شادی کیا ہوئی میرے ارحم بھائی کی، لوگوں نے تو انڈے اور ٹماٹر کے چھلکے برسا دیے۔ عادل نے لہک لہک کے شعر پڑھا تو ارحم نے اسے ایک سخت کھوری سے نوازا۔ کیا مسئلہ ہے تجھے؟ تھوڑی دیر کے لیے منہ بند نہیں کر سکتا؟ ارحم نے ماتھا مسلتے اس سے ڈانٹا۔ ہاں، اگر میرے چپ رہنے سے سارا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو میں چپ ہو جاتا ہوں۔ عادل نے اچھے بچوں کی طرح اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ لی۔ یار کیا کروں، سمجھ نہیں آ رہا۔ ارحم پھر سے زچ آیا۔ ہم یہاں منشی خیردین کی بیٹی کی شادی اٹینڈ کرنے آئے تھے، آپ تو یہاں خود دلہا بن کے بیٹھ گئے۔ بندہ پوچھے اتنی بھی کیا ہیرو پنتی؟ تو کیا کرتا؟ اس معصوم کمسن لڑکی کی شادی اس 50 سالہ بڈھے سے ہونے دیتا؟ میرا ضمیر گوارا نہیں کیا۔ ارحم کا چودھریوں والا خون پھر سے جوش مارنے لگا۔ نہیں، آپ نے تو بہت مہان اور اعلیٰ کام کیا ہے، اس کے نتائج سے بے خبر ہے نا آپ؟ سوچے جب آغا جان کو پتہ چلے گا تو کیا ہوگا، اور اکمل تایا آپ کا کیا حال کریں گے کہ بیٹے نے شرمندہ ہی کر دیا۔ تم اگر کوئی اچھی بات نہیں کر سکتے، کوئی مشورہ نہیں دے سکتے تو منہ بند کر لو۔ وہ گہرا سانس پھرتے بولا۔ ابھی وہ مزید کچھ بات کرتے کہ منشی خیردین اندر داخل ہوئے۔ بیٹا، آج آپ نے مجھ پر جو احسان کیا ہے اس کا بدلہ میں ساری زندگی نہیں چکا سکوں گا۔ منشی خیرالدین نے ارحم کے ہاتھ تھامے عقیدت سے کہا کہ بالکل، ان جیسا تو ہمارے پورے خاندان میں رحم دل پیدا ہی نہیں ہوا۔ عادل نے پھر سے لقمہ دیا تو ارحم نے اسے پھر سے گھورا۔ انکل، بابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ ایک بچے نے آتے ہی منشی صاحب کو باہر بلایا۔ اچھا بیٹا، میں تھوڑی دیر میں آتا ہوں، پھر آپ سے بات کرتا ہوں۔ منشی خیرالدین پھر سے باہر نکلے۔ کسے فون کر رہا ہے؟ ارحم نے عادل کو فون پر بزی دیکھتے پوچھا۔ کسی کو نہیں، وہ زیبی کا فون آ رہا تھا تو اس سے بات کرنے لگا۔ عادل، میں تجھے پہلی اور آخری بار وارن کر رہا ہوں، خبردار تو نے گھر میں یہ بات کسی کو بھی بتائی، ورنہ مجھ سے برا کوئی بھی نہیں ہوگا۔ عادل کے پیٹ ہلکا ہونے کی طبیعت سے ارحم اچھے سے واقف تھا، اس لیے اسے پہلے ہی وارن کر دیا۔ مجھے کیا پڑی ہے بتانے کی؟ یہ علاقہ آغا جان کا ہے اور یہاں چڑیا بھی پر مارتی ہے نا تو آغا جان کو پتہ چل جاتا ہے، تو ان کا بڑا پوتا یہاں ان کے منشی کی بیٹی سے نکاح کر چکا ہے۔ یہ بات مجھے ان تک پہنچانے کی ضرورت نہیں، خود ہی ان تک پہنچ جائے گی۔ عادل نے ناک سے مکھی اڑاتے کہا۔ جب پہنچے گی تب کی تب دیکھی جائے گی، لیکن تب تک تم اپنا منہ بند رکھ لو۔ ارحم نے اس کا موبائل لیتے اس کی پینٹ کی پاکٹ میں رکھا۔ سب مہمانوں کے جانے کے بعد منشی خیردین ارحم کے پاس بیٹھے تھے اور جو ارحم انہیں کہہ رہا تھا اس پہ وہ سوچ میں پڑ گئے۔ بیٹا، میں کیا کہہ سکتا ہوں، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ پری گل آپ کی امانت ہے، مجھ سے جہاں تک ہو سکا اس کی حفاظت کروں گا۔ آپ کوشش کیجیے گا کہ جلدی آ کر رخصت کروا کے لے جائیں۔ منشی خیردین باپ بھی تھے اور ملازم بھی، اس لیے سر جھکائے بولے۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، مجھے پتہ ہے کہ یہ بات زیادہ عرصہ چھپ بھی نہیں سکتی، صرف 1 ماہ چاہیے مجھے اور آپ کا یقین۔ ارحم نے بہت سنجیدگی سے انہیں کہا۔ جی بیٹا۔ وہ گہرا سانس بھر گئے۔ میں جانے سے پہلے ایک بار پری سے ملنا چاہتا ہوں۔ اچانک سے ارحم کی بات پر عادل کھسیانی ہنسی ہنسا۔ جی میں کروا دیتا ہوں، لیکن بیٹا 1 ماہ کے اندر آپ پری گل کو لے جانا۔ بوڑھا باپ ہوں، بیمار بندہ ہوں، زندگی موت کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بہت مون کے ساتھ آپ کا نکاح اس سے کر دیا ہے، اس کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے۔ اور وہ نم لہجے میں بولے تو ارحم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر میں ارحم کو پری گل کے کمرے میں جانے کی اجازت مل گئی۔ وہ اندر آیا تو پری گل دیوار کی جانب رخ کیے گھونگھٹ نکالے کھڑی تھی۔ پری، ارحم نے اسے پکارا تو پری کا دل دھک سے رہ گیا۔ کہاں کو اس کی شادی ایک 50-60 سالہ بڈھے سے ہو رہی تھی، کیونکہ اس کے باپ پہ اس کا قرض چڑھا ہوا تھا اور اس قرض کو اتارنے کے لیے اس نے پری گل کا رشتہ مانگ لیا، جو منشی خیردین نے نہ چاہتے ہوئے بھی دے دیا۔ پر ارحم چودھری نے جب یہ سب دیکھا تو برداشت نہیں کر پایا اور وہیں مردانے میں بیٹھے اچھی خاصی بدمزگی ہو گئی، جس پہ ارحم کو ہی قرض اتار کر یہ نکاح کرنے کی پیشکش کی گئی، جس پہ اس کے خون نے جوش مارا اور وہ نکاح کے لیے راضی ہو گیا۔ میں کوشش کروں گا کہ جلد ہی آ جاؤں اور آپ کو اپنے گھر لے جاؤں، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ انتظار کریں گی۔ ارحم نے ایک ہی بار میں ساری بات کہہ دی اور پری گل تو بالکل گمسم سی ہو کر رہ گئی۔ اس سے اندازہ نہ تھا کہ اسے نکاح کرنے والا شخص اسے بنا رخصتی کے یہیں چھوڑ کر جا رہا ہے۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی کی نظر ہو گئے کہ باہر سے عادل کی آواز آئی اور وہ بنا پری کا چہرہ دیکھے
पलट गया और एक पल को जी चाहा उसे कह दे कि मुझे अपना चेहरा दिखा दो, लेकिन न जाने क्या सोचकर वो चुप कर गया कि 1 माह की बात है और वो कुछ भी करके सब घर वालों को, खासकर आगा जान को राजी कर लेगा तो परी गुल को रुखसत करके ले जाएगी। अल्लाह हाफिज। अरहम की आवाज़ परी के कानों से टकराई। वो पलटी, लेकिन वो शहजादा जा चुका था और 18 साला परी की आंखें आंसू से भरने लगी। अरहम और आदिल मुंशी खैरदीन से इजाज़त लेते अपनी जीप की जाने बढ़े। अब उनकी मंजिल मीरपुर खास से हैदराबाद थी। वो जा चुके थे जबकि मुंशी खैरदीन गहरा सांस भर के रह गए। वो नहीं जानते थे कि आने वाले वक्त में क्या होने वाला है, लेकिन उन्हें एक इत्मीनान था कि उनकी बेटी का निकाह एक अच्छे इंसान से हो गया है और जल्द ही वो उसे रुखसती भी करवा के ले जाएगा। जा रहे हो, लौट के आना, देखो तुम हमको ना भुलाना, हम तो तेरे आशिक पुराने हैं, हम दीवाने हैं तेरे। आदिल ड्राइविंग करते लहक लहक के गाना भी गा रहा था, जिसका मकसद सिर्फ अरहम को तंग करना था, और वो तंग पड़ भी रहा था। शाम का वक्त है, मुंह को लगाम दे दे, अरहम ने उसे टोका। अच्छा छोड़े, ये बताएं कि पहली मुलाकात कैसी रही भाभी से, कैसी है? आदिल ने एक आंख विंक करते पूछा। मालूम नहीं, अरहम ने किसी ख्याल के तहत कंधे उचका दिए। क्या भाई, स्पेशल मुलाकात करवाई है और मालूम नहीं? आदिल हैरान हुआ। तो मैंने उसे नहीं देखा यार, वो चेहरा दूसरी जानिब की एक घूंघट में थी। अरहम आगे बदमज़ा हुआ बैठा था, ऊपर से आदिल भी उसे तंग कर रहा था। तो बोल देना था ना कि ज़रा पर्दा गिरा दो, ज़रा मुखड़ा दिखा दो, हम प्यार करने वाले हैं, कोई गैर नहीं। तुम्हें ना वकील नहीं, तुम्हें मिरासी होना चाहिए था। अरहम ने उसके गाने गाने वाली आदत पर तंजिया कहा कि हाँ भाई, अब तो हम आपको मिरासी ही लगेंगे ना, खुद दुल्हे राजा जो बन गए। वैसे कितने मज़े की बात है ना, वहाँ फूलों वाले हार पड़े हैं और हवेली पहुँचते ये खबर आगा जी तक पहुँची हुई तो जूतों। अपनी बकवास बंद करो। अरहम ने अब की बार उसे अच्छा खासा डांट दिया। 2 घंटे की मुसाफत के बाद वो हैदराबाद पहुँच गए। हवेली के अंदर गाड़ी एंटर हुई तो अरहम का दिल धड़क उठा। सभी उस वक्त अपने अपने कमरों में थे। रात का खाना जल्दी ही खा पी के सब सोने के आदी थे, सिवाय जवान पार्टी के। वैसे क्या लगता है, खबर पहुंची होगी? दोनों कारपोर्ट से चलते गार्डन एरिया से गुजरते अंदर की जाने पड़ गए। कौन सी खबर? अरहम ने बेध्यानी से पूछा। यार यही कि आप शादी अटेंड करने की बजाय खुद शादी करके आ गए हैं। आदिल के बाकी के अल्फाज मुंह में ही रह गए। सामने ही ज़ेबी खड़ी उनको होंकों की तरह देख रही थी। यार तो अपनी चोंच बंद कर ले आदिल, अगर तेरे मुंह से दोबारा मैंने ये बात सुनी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वो उसकी जाने मुड़ते बोला। सुन लिया? आदिल ने अरहम को देखते अफसोस से बोला, जबकि वह हैरानी से आदिल को देखने लगा और उसकी ज़ेबी की तरफ पीठ थी, इसलिए उसे अंदाज़ा न था कि वो पीछे खड़ी होगी। सुन लिया उसने? आदिल ने हाथ पे हाथ मारते लब भींची मसनूई अफसरदगी से कहा। किसने सुन लिया? अरहम ने माथा मसला। पीछे देखो। आदिल की बात पे अरहम ने उसके पीछे देखा। क्या है तेरे पीछे? अरहम को गुस्सा आने लगा और अरे मेरे नहीं, अपने पीछे देख, आदिल ज़िजाते बोला, जबकि उस दौरान ज़ेबी मज़े से उन दोनों की हरकतों को देखे गुमसुम सी खड़ी थी। तो यूं बोलना कि मेरे पीछे क्या? अरहम ने जैसे ही अपने पीछे देखा तो सांस से थम गई। ज़ेबी, अरहम ने ज़ेरे लब से पुकारा। सुन लिया, मैं बोल रहा हूँ ना, सुन लिया। आदिल ने फिर से बोला। तुम चुप करोगे? अरहम ने उसे टोका और आप माने ना माने, ज़ेबी ने सुन लिया, क्योंकि ज़ेबी तुमने सुन लिया ना? वो आगे बढ़कर ज़ेबू निसा से पूछ रहा था, जबकि अरहम को कुछ गड़बड़ का एहसास जागा। पीछे हट, मुझे बात करने दे। अरहम ने उसे बाजू से थामे पीछे की जानिब धकेला, लेकिन वो फिर से आगे होकर ज़ेबी के सामने आ गया। ज़ेबी, सच बताओ, तुमने सुन लिया ना? अभी वो फिर से बोलता, ज़ेबी ने ना समझी से दोनों की जानिब देखा और अरहम ने आगे बढ़कर ज़ेबू निसा के कान से हैंड्स फ्री बाहर निकाले और एक तशक्कुर का गहरा सांस भरा। हैंड्स फ्री थे यार, अरहम ने जैसे आदिल को बताते हुए खुशी का इजहार किया। मतलब ज़ेबी ने कुछ नहीं सुना? क्या हुआ, मुझे कुछ सुनना था। आप दोनों कुछ बात कर रहे थे क्या? ज़ेबी ने आदिल की बात काटते हुए छट से कहा। ये तुम यहाँ आधी रात को मोबाइल लेके कान से हैंड फ्री लगाए क्या कर रही हो? इससे पहले कि आदिल की चोंच फिर चलती, अरहम ने ज़ेबी को आड़े हाथों लिया। कैसे भाई हैं आप? एक तो मैं आप दोनों का इंतज़ार कर रही थी कब से कि आप आएँ और आप दोनों को मैं खाना दे दूँ, और
اوپر سے آپ مجھے ہی ڈانٹ رہے ہیں۔ زیبی نے بری سی شکل بنائی۔ نہیں، ہم کھانا کھا کر آئے ہیں، تم جاؤ سو جاؤ۔ ارحم نے اسے وہاں سے بھگایا جبکہ عادل کے پیٹ میں مروڑ پڑنے لگے۔ کیا ہوا؟ پیٹ میں درد ہے؟ زیبی نے عادل کی جانب دیکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھا، جو اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے برے برے منہ بنا رہا تھا۔ ہاں، اسے شادی کا کھانا ہضم نہیں ہوا نا، میں کروا دوں گا ہضم، چلو شاباش، تم جاؤ۔ ارحم نے زیبی کو وہاں سے چلتا کیا اور خود عادل کو لیے اندر کی جانب بڑھ گیا اور اسے اچھی طرح وارن کر کے اس کا منہ بند کروا کے وہ اسے اس کے کمرے میں چھوڑ کر آ گیا اور خود شاور لینے چلا گیا۔ آغا جی چودھری فراست بیگ، ان کے 2 بیٹے تھے، چودھری اکمل بیگ اور چودھری حشمت بیگ۔ اکمل بیگ بڑے تھے اور ان کی 3 اولادیں تھیں۔ بڑا بیٹا بلال، جس کی شادی اپنی پھپھو کی بیٹی مناحل سے ہوئی تھی، دوسرے نمبر پر ارحم، اور پھر لاڈلی بیٹی جو حویلی کی سب سے چھوٹی بیٹی تھی زیب النساء۔ تو دوسری طرف حشمت بیگ کی 2 اولادیں تھیں، بڑی مہر النساء جو ارحم سے 2 سال چھوٹی تھی، اور اس سے چھوٹا عادل جو ارحم سے 3 سال چھوٹا تھا۔ دونوں بھائیوں کی فیملی کے بیچ میں محبت، پیار اور انس تھا، تو اسی طرح آگے ان کی اولادوں میں بھی وہی محبت موجود تھی۔ حویلی کا کوئی بھی بڑا چھوٹا فیصلہ آغا جی ہی کیا کرتے تھے اور ان کے ہر فیصلے کو پتھر پر لکیر مانا جاتا تھا۔ بلال کی شادی مناحل سے ارینج میرج تھی، تو یہ بھی آغا جی کی مرضی سے ہوئی تھی۔ مناحل کو پڑھنے کا شوق تھا، وہ وکالت کرنا چاہتی تھی، لیکن شادی کی وجہ سے اسے پڑھائی ادھوری چھوڑنی پڑی، جبکہ بلال ایک کامیاب بزنس مین تھا۔ باپ دادا کے بزنس کو آسمانوں کی بلندیوں پر لے جانے والا سب سے اہم فرد چودھری کی سفید حویلی کا خوبرو چشم و چراغ جتنا خوبصورت اور ہینڈسم تھا، اتنا ہی غسیلہ بھی تھا۔ بلال اور مناحل کی شادی کو ابھی صرف 6 ماہ ہی ہوئے تھے، لیکن دونوں کے بیچ ابھی تک نہ ہی تکلف کی دیوار گری، نہ ہی سوچ کی ہم آہنگی پیدا ہوئی تھی۔ اکثر دونوں کے بیچ اختلافات پیدا ہوتے رہتے، جنہیں بلال کی والدہ سعدیہ بیگم خوش اسلوبی سے نمٹا کر ختم کر دیتی، لیکن دونوں ہی انتہا کے ضدی اور سخت دل واقع ہوئے تھے۔ ناشتے کی ٹیبل پر سبھی موجود تھے سوائے ارحم اور عادل کے۔ بہو، یہ دونوں ناشتے کے لیے کیوں نہیں آئے؟ آغا جی نے کھڑی دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید رات کو دیر سے آئے ہیں تو سو رہے ہوں، میں دیکھتی ہوں۔ فرحین بیگم جلدی سے اٹھیں۔ آپ بیٹھیں، زیبی بیٹا آپ جا کر بلا کر لائیں دونوں کو۔ آغا جی نے سنجیدگی سے زیبی سے کہا تو وہ جلدی سے اس بات میں سر ہلاتی گئی۔ زیبی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ مسلسل ہتھوڑے کی ضرب سے ارحم برے برے منہ بناتا اپنے کانوں پر تکیہ رکھ گیا، لیکن آواز پھر بھی آ رہی تھی۔ اس نے تکیہ ذرا سے پیچھے ہٹاتے سامنے کا منظر دیکھنا چاہا، جہاں عادل اس کے کمرے کی دیوار پر کیل سے کچھ ٹھوک رہا تھا اور اس کی نیند میں خلل ڈال چکا تھا۔ کیا کر رہا ہے پاگل انسان؟ ارحم نے انگڑائی لیتے پوچھا۔ کیلنڈر لگا رہا ہوں، اور مصروفیت بھرا جواب آیا۔ کیلنڈر؟ ارحم حیران ہوا، لیکن کیوں؟ وہ پاس پڑی اپنی شرٹ پہنتا حیرانی سے پوچھنے لگا۔ یلو لگایا ہے، یہ دیکھو، آج 10 تاریخ ہے، یہ میں نے لگا دیا یہاں کراس۔ کیا مطلب؟ یہ کراس کیوں لگایا؟ ارحم کا تو دل ہلک ہو آیا۔ ارے ڈر کیوں رہے ہیں؟ یہ موت کا کراس تھوڑی ہے، یہ تو آپ کی یاد دہانی کے لیے یہاں لگایا گیا ہے، اور روزانہ ایک تاریخ پر یہاں آ کے یہ ریڈ سے کراس لگایا کروں گا، تاکہ آپ کو احساس رہے کہ کوئی ہے جو آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ پری گل، ہماری گل بھابھی۔ عادل کی چونچ پھر سے سٹارٹ ہو چکی تھی۔ ارحم نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا، کیونکہ زیبی دروازے پر دستک دیتی اندر آ گئی۔ آپ دونوں جاگ رہے ہیں تو ناشتے پر کیوں نہیں آئے؟ آغا جان بلا رہے ہیں آپ دونوں کو۔ زیبی نے ان دونوں کو مشکوک نظروں سے دیکھتے کہا۔ آتے ہیں، تم جاؤ۔ ارحم نے اس سے وہاں سے چلتا کیا۔ زیبی ایک نظر ان دونوں کو پھر سے دیکھتی باہر نکل گئی۔ اپنی زبان بند رکھ عادل کے بچے، ورنہ مجھ سے شہید ہو جائے گا، ارحم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ لو، ابھی عادل کی شادی بھی نہیں ہوئی تو اور عادل کے بچوں کی پہلی فکر ستانے لگی۔ جلدی سے تیار ہو کر آ جائیں ڈاکٹر صاحب، اس سے پہلے کہ ہارٹ اسپیشلسٹ آغا جان آ کر آپ کا ہارٹ ٹرانسپلانٹ نہ کر دیں۔ عادل اس سے اونچی آواز میں بولتا باہر نکل گیا، جبکہ ارحم سر پیٹ کر رہ گیا۔ عادل جیسے بندے سے خود کو بچا کر رکھنا ایک بہت مشکل امر تھا، جبکہ اس کی زبان میں ہر وقت ہی کھجلی ہوتی رہتی تھی۔ ناشتے کی ٹیبل پر وہ دونوں ایک ساتھ پہنچے۔ کیا رات کو کافی لیٹ آئے ہو تم دونوں؟ شادی وقت پر ہوئی تھی نا؟ آغا جی نے دونوں کے سلام کرنے پر بیک وقت پوچھا۔ جی آغا جی، کافی مست شادی تھی، بہت مزہ ہے شادی پہ۔ عادل نے انڈے کی پلیٹ اپنی طرف کھسکاتے چہرہ حشاش بشاش بناتے کہا۔ اتنی اچھی تھی شادی تو مجھے اور زیبی کو بھی لے جاتے۔
हमारी भी आउटिंग हो जाती। अचानक से मेहरू की बात पर अरहम के गले में पानी अटका। अरे भाई आराम से, धीरज, क्या हो गया है? आदिल ने अरहम की कमर पर एक धमोका जोड़ा। दोनों में 3 साल का फर्क था, लेकिन देखने वाला कोई ये नहीं कह सकता था। यूं लगता था जैसे जुड़वा हो। अरहम बेटा ध्यान से, सादिया बेगम भी घबरा कर बोली। मैं चलता हूँ और आज एक बहुत ज़रूरी मीटिंग है। बिलाल ने उठते हुए कहा तो सादिया बेगम उसे दुआओं में रुखसत करने लगी, जबकि मनाहिल ने कुन अँखियों से उसे देखा। रात को उसने बिलाल से कहा था कि उसे मैके जाना है और रात को भी उसने कोई रिस्पॉन्स ना दिया और अब भी वो उसे नज़रअंदाज करता ऑफिस जा रहा था। मीटिंग की याद है, लेकिन बीवी ने रात को एक बात कही वो नहीं याद। मनाहिल ने जलते दिल से सोचा, ठीक है नहीं तो ना सही, मैं भी आगा जान से पूछ के चली जाऊंगी। मनाहिल ने भी दांत पीसते बिलाल की पुश्त को घूरा, जबकि आदिल भी अपनी प्रैक्टिस के लिए नाश्ता अधूरा छोड़ के बिलाल के साथ ही निकला था। घर में अरहम की शादी की बातें छिड़ गई, जो कि अरहम के लिए एक खुशाइन बात तो बिल्कुल भी ना थी, पर वो इस बात से लाइल्म ज़रूर था। पर आदिल था ना हर मर्ज की दवा। जैसे ही उसे अरहम की शादी की न्यूज़ मिली, वो फौरन उसके हॉस्पिटल पहुंच गया। क्या हुआ, यहाँ क्यों आए हो? तुम्हारी बीमारी का इलाज मेरे पास नहीं है। अरहम ने आज से आड़े हाथों लिया। अच्छा, मुझे कौन सी बीमारी लाहक हुई है? आदिल ने भवें चुकाई। दिमाग की बीमारी मेरी जान। अरहम ने मजाक उड़ाया। अभी मेरी बात सुनते आपको दिल की बीमारी लाहक होने वाली है। आदिल ने एक आंख विंक करते कहा। क्या मतलब? मतलब ये कि मेरे प्यारे भैया, आगा जान ने आपकी शादी करने का फैसला किया है और मेरी इत्तला के मुताबिक लड़की भी ढूंढ ली है। क्या बोले जा रहे हो? ऐसा कैसे मुमकिन है? यूं अचानक? अरहम को तो शौक ही लगा। मेरे ख्याल से आपके 20 दिन रह गए हैं गुल भाभी को मंजर आम पर लाने के लिए, और बहुत होगा हिम्मत करें और बोल दें आगा जान को कि आप मीरपुर खास शादी का तीर मार आए हैं। आदिल ने ड्रामेटिक अंदाज में कहा तो अरहम ने सर झटका। मुझे कुछ करना होगा वरना बात बिगड़ सकती है। पर आगा जान मेरी मर्जी के बिना कैसे? उन्होंने अपने लाडले पोते बिलाल भाई से उनकी मर्जी नहीं पूछी तो वो आपसे क्यों पूछने लगे? मालूम नहीं आपको, जो आगा जी चाहते हैं वही होता है। आदिल ने अब की बार संजीदगी से कहा। पर मुझे अब बात करनी पड़ेगी। अरहम ने सरनफी में हिलाया और उसे अब स्टैंड लेना था हर सूरत में। आदि रुको तो। वो जो सीधा रूम में जा रहा था, अचानक से ज़ेबी के पुकारने पर वो रुका। क्या है? मोबाइल से हैंड फ्री लगाए वो एक कान में ठूंसे हुए था, इसलिए ज़ेबी की आवाज़ सुन ली। और मुझे ना सच सच बताओ, क्या करके आए हो आप दोनों वहाँ? मुंशी खैरदीन की बेटी की शादी है, क्या छुपा रहे हो? ज़ेबी ने माथे पर बल डाले मशकूक अंदाज में पूछा। क्या मतलब क्या करके आए हैं? यकीनन कोई ना कोई गुल खिलाकर आए हो, सच सच बताओ। ज़ेबी आज बख्शने के मूड में ना थी। वो पिछले 1.5 हफ्ते से देख रही थी कि आदिल और अरहम को कुछ न कुछ ऊट पटांग बातें करते थे, और जब जैसे ही कोई और नजर आता वो बातों का रुख बदल देते। आज तो वो आदिल को छोड़ने वाली ना थी। गुल तो अभी खिलाना बाकी है जान, मौका ही नहीं मिला तुम्हारे भाई को, वरना जरूर गुल खिला ही आता। वो ज़ेरे लब बड़बड़ाया। क्या बोल रहे हो, ऊंचा बोलो। ज़ेबी उसके करीब हुई तो आदिल के दिल की धड़कनें भी बढ़ गई। वो हमेशा ऐसे ही करीब आके उसके जज्बात को हवा देती थी, जबकि उसकी मासूमियत से आदिल अच्छे से वाकिफ था। सच बताओ, कहीं तुम वहाँ शादी तो? ज़ेबी की आंखों में आंसू भर आए। खुदा का खौफ करो लड़की, मैं और शादी? क्यों मुझे पिटवाना है आगा जान से? वो उसके होंठों पर हाथ रखे उसे चुप करवाने लगा कि उसके नर्म और मुलायम लबों का लम्स अपने हाथ की हथेली पर महसूस करते आदिल की एक हार्ट बीट मिस हुई थी। फिर सच सच बताओ, किसकी शादी करवा कर आए हो? ज़ेबी तो उसे लड़ने मरने को तैयार हो गई। यार किसी की नहीं, चुप कर जाओ, क्यों मुझे मरवाना है? वो ज़िजाया। ठीक है, अगर तुम मुझे नहीं बताते मैं जाके मामा को बताती हूँ, वो खुद। ज़ेबी वापस अंदर की जाने बढ़ी कि आदिल ने उसका रास्ता रोके उसकी कलाई थामे अपने कमरे में ले गया। उसका ये अंदाज देखते दूर खड़ी मेहरुनिसा के माथे पर बल पड़े। आखिर उन दोनों के बीच में ऐसा चल क्या रहा है? मेहरू के भी कान खड़े हो गए। वो उनके पीछे जाती, लेकिन उसे अंदर सादिया बेगम ने बुला लिया तो वो सर झटकती अंदर चली गई। आदिल उसे रूम में लाता दरवाज़ा लॉक कर गया और फिर उसे अरहम के निकाह की सारी तफसील बता दी। ज़ेबी तो मुंह खोले हैरत से उसे देखती रह गई। क्या अरहम भाई ने निकाह कर लिया? हाउ इज़ पॉसिबल? आदि, आगा जान तो मेहरू आपी के साथ उनकी शादी फिक्स कर चुके हैं। वो कैसे? व्हाट? मेहरू से अरहम भाई की शादी? आदि को भी शौक लगा।
हाँ ना, और आगा जान तो कल बकायदा मंगनी का ऐलान करने वाले हैं, अब क्या होगा? ज़ेबी भी सर पकड़ कर बैठ गई। आगा जान बिना कुछ भी सोचे समझे फैसला ले लेते हैं, पहले बिलाल भाई और अब अरहम भाई। यार, किसी की मर्जी बंदा पूछ ही लेता है। आदि को आगा जान के इस तरह के फैसले पर गुस्सा आ रहा था। अब तो लगता है कि कल कयामत ही आने वाली है। ज़ेबी ने आदिल का हाथ थामते हुए घबराते हुए कहा, तुम थोड़ा दूर होकर बात नहीं कर सकती? आदिल ने अपना हाथ छुड़ाते हुए खफगी से कहा, एक्सक्यूज़ मी, क्या तुम्हारा सौदा हो गया है जो तुम्हें हाथ नहीं लगा सकती? वो उसके सीने पर हाथ से पुश करते घूरते हुए बोली, नहीं, सौदा तो नहीं हुआ, लेकिन जब तुम छोटी हो तो दिल में बटरफ्लाईज उड़ने लगती हैं। आदिल ने उसकी ब्राउन आंखों में झांकते हुए जरा सा उसके करीब होके झुकते हुए कहा, अच्छा, मैं एक एक बटरफ्लाई को पकड़कर मार दूंगी। खबरदार जो मेरे साथ जरा सा भी फ्लर्ट करने की कोशिश की, वरना आगा जान को जाके शिकायत लगा दूंगी। वो उसे धमकी लगाते दरवाज़ा खुलकर बाहर जाने लगी कि दरवाजे के बाहर फरहीन बेगम को देखकर वो ठटक गए। मामा, आप? ज़ेबी का रंग एकदम फक हुआ। क्या कर रहे थे दोनों कमरे में, और दरवाज़ा लॉक क्यों था? फरहीन बेगम की बात पर ज़ेबी का जी चाहा कि ज़मीन फटे और वो उसमें समा जाए। मामा जान, हम बस बात। आदिल ने आगे बढ़कर सफाई देनी चाहिए। ऐसी कौन सी बात थी जो दरवाज़ा बंद करके की जा रही थी? उन्होंने ज़ेबी को कलाई से थामे बाहर खींचा। चची जान, मेरी बात तो सुने, वो बोली, लेकिन फरहीन बेगम ने उसकी एक भी ना सुनी। आदि भी पीछे ही लपका और उसे अंदाज़ा न था कि यूं बात बिगड़ जाएगी, जबकि रब गवाह था कि दोनों की नीयत खराब ना थी। क्या हुआ? फरहीन क्यों शोर मचाया हुआ है? सादिया बेगम ने नागवारी से पूछा। मुझसे क्या पूछ रही हैं? अपनी बेटी से पूछें। मेरे बेटे के कमरे में घुसकर क्या बात कर रही थी, वो भी डोर लॉक करके? उनकी इस बात से कितने मतलब निकलते थे उन्हें खुद भी अंदाज़ा न था। ज़ेबी की आंखों से बेतहाशा आंसू बहने लगे। ताई जान, ऐसा कुछ भी नहीं है, मामा को गलतफहमी हुई है। आदिल ने सचाते सादिया बेगम की नज़रों में अपने लिए हैरानी देखते कहा। तभी अरहम अंदर दाखिल हुआ। तुम ज़ेबी को रूम में लेके गए थे या वो खुद तुम्हारे साथ गई थी? सादिया बेगम के सवाल पर वहां मौजूद हर फर्द ही बुरी तरह से चौंका। ताई अम्मी, आदिल को यकीन आया। उसकी ताई अम्मी जो उससे सबसे ज्यादा प्यार करती थी, उस पर यूं शक करेंगी? जो पूछा है वो बताओ। आदिल ने एक नज़र रोती ज़ेबी को देखा। मैं लेके गया था, वो सर झुकाए जब से बोला। और दरवाज़ा वो किसने लॉक किया था? उनके अगले सवाल पे आदिल ने बेबसी से अरहम को देखा, जो यकटक उसे ही देखे जा रहा था। मैंने वो आंखें मीच के खोलता सादिया बेगम को देखने लगा। एक जोरदार थप्पड़ की आवाज़ आई। अचानक पड़ने वाला थप्पड़ सबको ही हैरत ज़दा कर गया। घर की बेटी है वो, और तुम? छी, शर्म नहीं आई तुम्हें ये हरकत करते? फरहीन बेगम ने रोते हुए आदिल का रुख अपनी तरफ मोड़ते एक थप्पड़ जुड़ दिया। आदिल ने अपनी मुट्ठियां सख्ती से भींची हुई थी, खुद को कुछ भी सख्त कहने से बाज रखा, और जबकि ज़ेबी का रो रो कर बुरा हाल था। अपने ही घर में नकब लगा रहे हैं? क्या ऐसी तरबियत की है हमने तुम लोगों की? और ये मेरी बेटी, कितना मान था मुझे इस पे। सादिया बेगम ने ज़ेबी को दोनों हाथों से परे धक्का दिया कि वो गिरते गिरते बची। आदिल का दिल चाहा कि सबको आज आईना दिखा दे, लेकिन बड़ों का लिहाज करते अभी तक खामोशी रहा। बस करें मोमानी जान, क्या हो गया है? और छोटी मोमानी, आप क्यों इस तरह से छोटी सी बात का पतंगड़ बना रहे हैं आप लोग? क्या आदि और ज़ेबी किसी से छुपे हुए हैं? सारा बचपन हमारे सामने गुजरा है इनका, और मुझे पूरा यकीन है कि उन्होंने कुछ भी गलत। तुम चुप रहो। अचानक से मनाहिल के बीच में बोलने से सादिया बेगम को गुस्सा आ गया। ये हमारे घर का मामला है और हमारे बच्चों का, तुम्हें बीच में बोलने की कोई ज़रूरत नहीं, और ना ही तुम्हारा कोई हक है। उनके करख लहजे पर मनाहिल ने बेयकीनी से उन्हें देखा। उसकी शादी को 6 माह गुजर गए थे। ना ही उनके बेटे ने उसे अपनाया था और ना ही इस हवेली के लोगों ने। तो वो उन 6 माह से यहाँ क्या कर रही थी? ये वो सवाल था जिसका जवाब मनाहिल को न मिला। अम्मी, भाभी ठीक कह रही हैं, आदि और ज़ेबी दोनों मासूम हैं, और अरहम ने भी उनकी ही साइड ली। आदिल ने तशक्कुर भरे अंदाज में उसे देखा। जब एक नामहरम लड़का और लड़की अकेले कमरे में होते हैं तो वो मासूम नहीं रहते, क्योंकि उनके बीच तीसरा शैतान होता है। फरहीन बेगम की बात पर अरहम ने लब भेंचे उन्हें देखा। जो भी हो, मैं जानता हूँ मेरी बहन मासूम है। अरहम ने आगे बढ़कर ज़ेबी को अपने सीने से लगाया तो सादिया ने रुख फेर लिया। आगा जी से बात करके आज इन दोनों का निकाह करवा देते हैं, क्या पता कल को कोई और बदनामी गले पड़ जाए। ताई अम्मी, आदिल सादिया बेगम की बात सुनते तड़प ही उठा था। क्या बोल रही हैं आप? कुछ तो खुदा का खौफ करें, मेरे लिए ज़ेबी बहुत मुकद्दस है।
دل سے اس کی عزت کرتا ہوں اور میں مانتا ہوں کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھے یہ سب نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اللہ جانتا ہے کہ ہماری نیت خراب نہ تھی، پر آپ یقین نہیں کریں گی تو ٹھیک ہے، جو بھی سزا دینی ہے مجھے دے دیں، بتا دیں آغا جان کو اور بھر دیں ان کے کان، کیونکہ آپ سب کو اپنی تربیت میں کھوٹ لگ رہا ہے نا، تو ہوگا کھوٹ، پر اس سب میں زیبی بے قصور ہے، یہ یاد رکھیے گا کہ میں ہر سزا سہنے کو تیار ہوں۔ اوہ، تو بات کافی آگے نکل گئی ہے، یہ تو محبت چاہت کا ماجرا لگتا ہے۔ مہرو نے سوچتے ہوئے اپنے بھائی کو دیکھا، کیونکہ آگ بھی اسی نے لگائی تھی، اسی نے جا کے اپنی ماں کے کان بھرے تھے، جو وہ غصے سے عادل کے کمرے کی جانب آئی تھی، اور شام کو بڑے ہال میں ایک جرگہ بیٹھا تھا۔ عادل کے حساب سے یہ جرگہ ہی تھا جہاں گھر کے بچوں کو بنا ان کی مرضی کے ذبح کیا جاتا تھا۔ کافی سوچ بچار اور بحث کے بعد جرگے کا فیصلہ سب کو سننے کو مل گیا۔ کل صبح ہی مولوی صاحب کو بلوا کے عادل اور زیبی کا نکاح کرنے کا فیصلہ ہوا، تو وہیں ارحم اور مہرو کا نکاح بھی کل ہی فکس کر دیا گیا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ بات عادل اور زیبی کی تھی، مجھے کیوں بیچ میں لا رہے ہیں؟ ارحم ہتے سے اکھڑ گیا۔ اس میں اتنا چلانے کی کیا بات ہے؟ بڑے ہیں وہ، اچھا اور بہتر ہی فیصلہ کریں گے۔ اکمل صاحب نے بیٹے کا بدتمیزی لیے ہوئے لہجہ نوٹ کرتے ہوئے کہا۔ ارحم، کیا اعتراض ہے تمہیں؟ آغا جان نے سخت سنجیدگی سے پوچھا۔ میرے لیے مہرو زیبی جیسی ہے، میں مہرو سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے صاف لفظوں میں انکار کرتے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، بہن ہونے میں اور بہن ماننے میں فرق ہوتا ہے، تم دونوں کا نکاح جائز ہے، ٹھیک ویسے ہی جیسے عادل اور زیبی کا۔ آغا جان نے اسے صاف لفظوں میں ٹوکتے ہوئے اپنا فیصلہ برقرار رکھا۔ ایک طرف عادل اور زیبی تو بالکل خاموش ہو کر ہی رہ گئے تھے، جبکہ دوسری طرف مہرو کی تو سچ میں بانچھیں کھل اٹھی تھی۔ وہ ارحم کو بہت پسند کرتی تھی، اور یوں اچانک نکاح کے فیصلے نے اسے مزید خوش کر دیا۔ لیکن مجھے نہیں کرنا یہ نکاح، آپ اس فیصلے کو بدلیں، ارحم نے قطعی انداز میں کہا۔ تم کسی اور کو پسند کرتے ہو؟ آغا جان نے اس کے یوں بار بار انکار کرنے کی وجہ یہی سمجھ پائے تھے۔ ایک پل کو وہاں خاموشی چھا گئی۔ یہی سمجھ لیں، ارحم کی بات پر سب پر پہاڑ ہی ٹوٹ پڑا۔ میری ایک بات تم کان کھول کر سن لو، اس حویلی کا ہر فیصلہ میری مرضی سے ہوتا ہے اور آگے بھی میری مرضی سے ہی ہوگا، اس لیے کل اپنے آپ کو اس نکاح کے لیے تیار کر لو۔ میں کسی بھی قسم کی کوئی بدمزگی کل برداشت نہیں کروں گا۔ آغا جان غصے سے کہتے اپنی اجرک کی شال کو ایک کندھے سے دوسرے کندھے پر چھٹکتے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، جبکہ حشمت صاحب اور اکمل صاحب بھی ارحم کو سختی کھوری سے نوازتے اپنے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے، اور بلال نے سرنفی میں چھٹکتے اپنے کمرے کا رخ کیا۔ مہرو کی آنکھوں میں ڈھیروں آنسو تھے۔ ارحم نے اسے ٹھکرا دیا اور اسے کسی صورت یہ بات برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اب کیا کریں گے؟ عادل ارحم کے روم میں آتا فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ پہلے تو تم بتاؤ کہ کیا مسئلہ ہوا تمہارے اور زیبی کے بیچ جو بات یہاں تک پہنچ گئی؟ ارحم نے اسے آڑے ہاتھوں لیا تو عادل نے اسے ساری بات بتا دی۔ اب خود بتاؤ کیا کرتا میں؟ وہ مجھ پر شک کر رہی تھی تو مجھے اپنا آپ تو کلیئر کرنا تھا، بس اپنا آپ کلیئر کر کے میری ذات کو مشکوک بنا دیا۔ اب زیبی کو بھی تم نے بتا دیا، اور کوئی رہتا ہے تو اسے بھی بتا دے۔ یار زیبی نہیں کسی سے کچھ کہتی، پتہ ہے اپنی بہن کا۔ عادل نے گہرا سانس خارج کیا۔ ہاں، ایک کام کر، باری باری سب کو بتا دے، بلکہ سیدھا جا کے آغا جان کو ہی بتا دو، میری بھی جان چھوٹے۔ بتا دینا اگر ان کے پاس 2 نالی والی بندوق نہ ہوتی تو۔ عادل کے برجستہ جواب پر ارحم نے اسے گھورا۔ مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے انہوں نے کچھ نہیں کہنا، آپ کی خاطر چپ ہوں، پر میرا خیال ہے کہ آپ کو بھابھی کو کل ہی حویلی میں لے آنا چاہیے، تاکہ آغا جان میرے سمیت اسے بھی سیدھا اس بندوق سے گولی مار دے، اسے بھی اوپر پہنچا دے۔ ارحم نے اس کی بات اچکی۔ پھر کچھ تو کرنا ہوگا نا۔ عادل بھی اب اس کے لیے حقیقتاً پریشان ہو گیا تھا، اور ارحم گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ سامان کیوں پیک ہو رہا ہے؟ بلال نے مناہل کو اچانک بیگ پیک کرتے دیکھ کر اجنبی سے پوچھا۔ ماما کے گھر جانا ہے کل، اس لیے، سرد اور سپاٹ لہجے میں جواب آیا۔ کیا مطلب؟ کل نکاح ہے گھر میں اور تمہیں ماما کے گھر جانا ہے؟ وہ بستر پر بیٹھتا ماتھے پر بل ڈالے پوچھ رہا تھا۔ میرے ہونے یا نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ نکاح کے لیے لڑکا لڑکی، ولی اور ایک قاضی کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ ہوں گے کل۔ مناہل کی ذات کسی کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتی تھی۔ وہ بیگ کی زپ بند کرتے بیگ کو ایک طرف رکھتے کھڑی ہوئی۔ تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھے تم؟ بلال نے دھونس جماتے ہوئے کہا۔ میں فیصلہ کر چکی ہوں بلال، آپ یا تو کل خود مجھے چھوڑ آئیے گا
या ड्राइवर से कहिएगा कि मुझे छोड़ाए, वरना क्या? वो मोबाइल एक तरफ फेंकता गुस्सा जब्त करते उसकी जानिब बढ़ा कि मिनाहिल डर के एक पल को चुप हो गई। उसे लगा शायद बिलाल उस पर हाथ उठाए। बहुत जुबान चलने लगी है तुम्हारी, कभी कुछ कहा नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि बोल नहीं सकता। तो बोल दें, किसने रोका है? जहां बाकी सब बोलते हैं आप भी बोल दें। वो रोंदे लहजे में बोलती और बिलाल को लब भींचने पे मजबूर कर गई। इन 6 महीनों में ना तो आपने मुझे कबूल किया और ना ही इस हवेली में रहने वालों ने, तो मेरा यहाँ वजूद बेमानी है। तो मुझे क्या ज़रूरत है यहाँ रहने की? आज न चाहते हुए भी उसकी ज़ुबान से शिकवा फिसल गया। तो तुमने कौन सा आगे बढ़कर पहल की मनाहिल? अगर अपनाने की बात है तो मैं आज ही तुम्हें बीवी के रूप में अपनाने को तैयार हूँ। क्या तुम तैयार हो खुद को मुझे सौंपने के लिए? और वो 2 कदम उसकी जानिब बढ़ता सपाट अंदाज में पूछ रहा था, जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते? मिनाहिल का दिल जोरों से धड़क रहा था। मिनाहिल, हमारी लव मैरिज नहीं कि प्यार ढूंढती फिरो। मैं भी कोई टीनेज बंदा नहीं कि मोहब्बतों के गाने गाऊं। मुझे तो रोमांस से सख्त एलर्जी है। मेरी जिंदगी में आज तक कोई सनफ नाजुक नहीं आई। मुझे हैंडल करना भी नहीं आता और तुम मुझसे ऐसी उम्मीदें बांध रही हो जो मैं चाह के भी पूरी नहीं कर सकता। हाँ, तुम्हारे करीब हो सकता हूँ और तुम्हें छू सकता हूँ, तुम्हारे रूम में उतर सकता हूँ, तुम्हें अपना बना सकता हूँ। और वो एक एक बात पर जोर देता कहते हर लफ्ज़ के साथ कदम भी आगे बढ़ा रहा था कि वो दीवार से जा लगी। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। और फिर उससे क्या होगा? सिर्फ जिस्म मिलेंगे कि दिल मिल पाएंगे? मिनाहिल की बात पर वो यकटक उसे देखे गया। उसके तीखे नए नक्श नज़रअंदाज करने के काबिल तो न थे। बिलाल, हमें खुशखबरी कब सुनाओगे? नजरें झुकाए वो आज सुबह की सादिया बेगम की बात याद करता मिनाहिल को फिर से देखने लगा। मामा को पोता या पोती की ख्वाहिश है मिनाहिल। अब कैसे कहूँ कि उनकी बहू कोई कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करती? बिलाल की बात में मिनाहिल की आंखों से आंसू बह निकले। मतलब आप आज अगर मेरे पास आ रहे हैं तो क्या आपको बच्चा चाहिए? वो फिर से उससे दूर होने लगी। तो बच्चा बीवी ही पैदा करती है ना, शौहर तो नहीं। बिलाल की बात पे वो उसे घूर के रह गई। मुझे नींद आ रही है। और वो एक तरफ से होकर निकलने लगी कि बिलाल ने उसे एकदम कमर में हाथ डाले अपनी जानिब खींच लिया। कौन सी नींद आ रही है? वो उसकी कमर में अपनी उंगलियां पेवस्त किए उसे बुरी तरह लर्जाए जा रहा था। बिलाल, वो आज तो मिनाहिल बुरी ही फंसी थी। उससे पछतावा हो रहा था कि क्यों उसने बिलाल के अंदर के सोए हुए मर्द को जगा दिया। अच्छा था कि खामोशी से रह रहे थे। आज तो उसके देखने का अंदाज ही बदल गया। तुम शर्मा रही हो? वो उसका चेहरा ऊपर उठाते मुस्कुरा के पूछ रहा था। क्योंकि मेरे अंदर शर्मो हया है, वो न रूठे अंदाज से बोली। फिर तो आज की रात तुम शर्माती ही रहोगी। वो उसे अपने सीने से लगाता अपनी एक बाजू पर उठाता बिस्तर की जाने बढ़ा। उसकी धड़कनों का ताल मेल सुनता बिलाल भी अपने दिल को बेकाबू होता महसूस कर रहा था। धीरे से उसे बिस्तर पर लिटाता वो उसका दुपट्टा एक तरफ करता उसको बहुत कुछ बावर करवा चुका था। बिलाल, क्या करने लगे हैं? वो मासूम बनते पूछ रही थी। लूडो खेलने लगा हूँ। वो उसकी बात पर बदमज़ा होता बोला कि वो आंखें फैलाए हैरत से उसे देखने लगी। क्या यार, एक तो गिला करती हो, रोमांस नहीं करता जो थोड़ा सा रोमांटिक होने की कोशिश करता हूँ, ऊपर से तुम्हारी ये मासूम बातें। वो तकिए पे सर धरे गहरा सांस भर गया। मिनाहिल ने अपनी हंसी होंठों में छुपाते रुख फेर के बिलाल को देखा। मैंने तो कुछ नहीं कहा, वो तो बस आप जब छू रहे थे तो मुझे यहाँ पेट में दर्द हो रहा था। अब की बार भी वो मासूमियत से बोली। कहाँ? वो परेशानी से उसके पेट को छूने लगा। बिलाल, वो गहरा सांस भरती तड़प से गई। कहाँ दर्द है, बताओ भी। वो उसकी बात ना समझी वाले अंदाज में सुनता उसके पेट पर जगह जगह हाथ लगाता चेक करने लगा। मूव कर रहा है और कभी यहाँ और कभी वहाँ, प्लीज़ आप हाथ पीछे हटा दें। वो बेबसी से गहरे सांस भरते बोली और उसकी कैफियत समझते बिलाल ने लाइट्स को डिम किया और कंफर्टर खोलते उस पर साया फिगन हुआ। निकाह का वक्त हो चुका था लेकिन अरहम का कहीं भी कुछ पता न था। सभी इंतज़ार में थे। मौलवी साहब भी अंदर बैठे थे जबकि सेबी और मेहरू दुल्हन बनी अंदर बैठी थी। दोनों का ही दिल धड़के जा रहा था जबकि मिनाहिल उनके पास ही थी। थोड़ी देर में ही निकाह की सुन्नत अदा होनी थी लेकिन अरहम को बार बार फ़ोन किया जा रहा था। वो यहाँ नहीं था और ऐसे में घर के बड़े सभी परेशान थे। आज अगर अरहम ना आया तो मैं उसे इस हवेली से निकाल दूंगा। अकमल चौधरी, सुन लो ये बात, आगा जान ने अपना गुस्सा जब्त करते कहा जबकि हशमत साहब ने बड़े भाई के कंधे पे हाथ रखते उन्हें तसल्ली दी। मेरी बात हुई है उनसे, कह रहे हैं कि आ रहा हूँ, थोड़ी देर हो जाएगी। अचानक से आदिल की बात पर सबने तशक्कुर का सांस भरा।
जब पता था कि आज निकाह है तो कहीं भी जाने की क्या ज़रूरत थी? आगा जान ने ज़ब्त करते कहा, चलें जब तक वो आता है तब तक आदिल और ज़ेबी का निकाह कर लेते हैं। हशमत साहब की बात पर सभी ने नीम रजामंदी जाहिर करते हाँ में हाँ मिलाई। थोड़ी देर में मौलवी साहब आगा जान और अकमल साहब के साथ जनान खाने की जाने बढ़े। ज़ेबी को घूंघट उड़ा दिया गया, जबकि महरूबी चेहरा ढांपे हुए थी और हैरानी से माँ को देख रही थी, जिन्होंने आंखों ही आंखों में उसे तसल्ली रखने को कहा। ज़ेबुन्निसा बिन्त अकमल चौधरी, आपका निकाह चौधरी आदिल बेगम पल चौधरी हशमत बेग से 10 लाख सिक्का रायचुल वक्त तय पाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? जी कबूल है। ज़ेबी ने धड़कते दिल से अपने जुमला हकूक आदिल के नाम कर दिए। 3 बार कबूल और इजाब करवाते वो उठ के बाहर चले गए। चौधरी आदिल बेग वल्द हशमत बेग, आपका निकाह ज़ेबुन्निसा बिन्त अकमल चौधरी से 10 लाख सिक्का रायजुल वक्त तय पाया है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आदिल ने सच्चे दिल से ज़ेबुन्निसा को अपने निकाह में लिया। सभी ने दुआ के लिए हाथ बुलंद किए और दुआए खैर हुई। मुबारक हो, निकाह मुकम्मल हुआ। अभी मौलवी साहब के अल्फाज मुंह में थे कि अरहम अंदर दाखिल हुआ। लो आ गया अरहम, अब उसकी भी। अकमल साहब बेटे को देख के खुश हुए थे, लेकिन एकदम उनके अल्फाज मुंह में ही दम तोड़ गए जबकि अरहम के पीछे एक नकाब में लिपटी लड़की को देखा। सभी की सवालिया नजरें अरहम पर उठी। आदिल ने अरहम को आंखों ही आंखों में हौसला दिया। अरहम, ये लड़की कौन है? आगा जान की करख्त आवाज़ पर सभी घबरा कर उठे। अंदर जनान खाने तक भी ये खबर पहुंच गई थी। सभी घर की औरतें हवेली के सहन में जमा हो गई। आगा जान, ये परी गुल है, मेरी बीवी। 3 हफ्ते पहले ही हमारा निकाह हुआ है मीरपुर खास में। अरहम ने तो एकदम से ही सब पर बॉम्ब फोड़ा। किसी को उसकी बात पर यकीन आया। तुम क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? आगा जान की कड़कदार आवाज़ सुनाई दी। यही सच है आगा जान, मैं निकाह कर चुका हूँ और इसलिए आपको मना कर रहा था, पर आपने मेरी बात। मेरी बंदूक लेकर आओ अकमल, आज या तो मैं नहीं या तुम्हारा ये नाफरमान बेटा नहीं। उनकी ऊंची ललकार पर एक पल को सभी सहम गए, लेकिन अरहम बिल्कुल भी 1 इंच अपनी जगह से न हटा। आगा जान, क्या हो गया है? बेटा है वो मेरा। अचानक से सादिया बेगम बीच राह में हायल हुई और उन्हें रोक दिया। अपनी बहू को यूं बीच में आता देखकर आगा जान को शदीद गुस्सा आया और उन्हें दूर धक्का दिया। अम्मा, ताई अम्मा, मामा। बिलाल, आदिल और अरहम समेत तीनों ही तड़प उठे। बिलाल ने फौरन माँ को सहारा दिया। वो वहीं पास खड़ा था। माँ, आप ठीक है ना? उसने घबराए हुए पूछा, जिनकी आंखों में ढेरों आंसू थे, और एक शिकवा भरी निगाह शौहर पर डाली। खबरदार, जो आज कोई भी मेरे रास्ते में आया, इस नाहंजार के इस अमल की कोई भी माफ़ी नहीं। आगा जान ने अपनी बंदूक अरहम पर तानी तो सादिया बेगम अरहम के सामने ढाल बनकर खड़ी हो गई। मेरे बेटे को मारने से पहले आपको उसकी माँ को मारना होगा आगा जान, सादिया बेगम नडर अंदाज में बोली, जबकि उनके दाएं बाएं बिलाल और आदिल भी खड़े थे। आप बहुत सख्त ज़्यादती कर रहे हैं आगा जान। मेरी माँ को आपने धक्का दिया। पहली और आखिरी बार समझ के मैं चुप रहा, लेकिन अब अगर आपने गोली चलाई तो मेरी गन से भी गोली निकलेगी। बिलाल ने अपनी पॉकेट से गन निकाली, जिसे देखकर मिनाहिल हकतक रह गई। सुबह सुबह ही वो ये गन बिठा साफ कर रहा था। अरे, ये आज आपने गन क्यों निकाली है? क्या कहीं शिकार पर जाना है? मिनाहिल ने उसके पास बैठते इश्तियाक से पूछा तो वो गन की नाल में फूंक मारता उसे कमर से थामे अपनी गोद में बिठा गया। शिकार तो मैंने रात को कर लिया है, अभी तो बस गन के साथ खेलना है। वो धीरे से उसकी गर्दन पर अपने होंठों का नर्म लम्स भकेरता उसे सरता पैर लर्जा गया। उसके चेहरे पर खिलते गुलाल को देखे बिलाल के चेहरे को भी मुस्कान ने छुआ था। रात भर उसकी शिद्दतों को सहते वो सुबह एकदम हशाश बशाश थी, जैसे उसे भी बिलाल से यही उम्मीद थी कि वो उसे अपना ले। वो एक रात में ही बदल सी गई थी। ओह, तो ये खेल खेलना था इन्हें? मतलब उन्हें पहले से पता था कि अरहम भाई ने निकाह कर लिया है? मिनाहिल अपने दिमाग को घोड़े दौड़ा रही थी। अकमल चौधरी, देख लो, तुम्हारा बेटा मुझ पर गन ताने खड़ा है। आज ये भी ना बतानी थी, लेकिन तुम सब सुन लो, इस नाफरमान को मैं नहीं छोड़ूंगा, इसे मार के ही दम लूंगा। उन्होंने बंदूक का ट्रिगर दबाने को उंगली दबानी चाहिए। मामा प्लीज हट जाए, उन्हें मुझे मारना है, मारने दे, अब बहुत हो गया। अच्छा है कि एक अदद मरेगा तो इनको भी सुकून आ जाएगा। अरहम ने माँ को अपने आगे से हटाना चाहा कि सादिया बेगम ने रख के एक थप्पड़ उसे रसीद किया। एक पल को वहां सन्नाटा छा गया। कितना आसान है ना तुम लोगों के लिए मरने मराने की बात करना। अरे माँ बाप से पूछो कैसे मिन्नतों और मुरादों से मांगते हैं औलाद।
रातों को उठ के जाग के देखते हैं कि कहीं सांस तो नहीं रुक गई, और आज मरने की बात। माँ का कलेजा चीर रहे हो। अरे इससे अच्छा है कि पहले मुझे मौत आ जाए। वो अरहम के सीने पर 2-3 झापड़ और जुड़ गई। आगा जान बंदूक हटा लें। अचानक से हशमत साहब की बात पर आगा जान ने उन्हें घूरते देखा। सुन लें आगा जान, प्लीज, कोई खून खराबा नहीं, कोई कत्लो गारत नहीं, प्लीज। आगा जान, ऐसी जंग नहीं लड़नी जिसमें मारने वाले भी अपने हों और मरने वाले भी। प्लीज यहीं आज इस बात को खत्म कर दें। भूल जाएं कि कभी मेहरू और अरहम का निकाह होना भी था। वो दिल पे पत्थर रखे आगा जान से बोलते उसकी बंदूक नीचे करते अंदर की जाने पड़ गए। सभी तरफ एक पल को खामोशी और सन्नाटा छा गया। दिल ही दिल में सबने शुक्र अदा किया कि आगा जान टल गए थे। वो बिना किसी से बात किए अपने कमरे की जाने बढ़ गए तो बिलाल ने अरहम को इशारा किया कि माँ को लेकर अंदर जाए और मिनाहिल से कहा कि वो उस लड़की को लेकर जनान खाने की जानिब चली जाए। मिनाहिल ने फ़ौरन हुक्म की तामील की, जबकि अरहम माँ को सीने से लगाए अंदर उनके कमरे की जानिब आ गया। अचानक से सब कुछ बदल गया था। मेहरू दुल्हन बनी निकाह के बिना रह गई। उसने गुस्से से घूंघट हटाया तो सामने ही एक पठानी सी लड़की उसकी नज़रों के सामने आन खड़ी। वो बहुत खूबसूरत और कमसिन थी। इसे अंदर क्यों लाई हैं? मेरे जख्मों पर नमक छिड़कने के लिए? मेहरू ने बदतमीजी से बात करते गुल को एकदम पीछे धक्का दिया कि वो मिनाहिल ने उसे फौरन थामा और वो गिरते गिरते बची। क्या हो गया है मेहरू, अभी वो गिर जाती। मिनाहिल ने उसे धीरे से समझाया। तो गिरी हुई तो है ये, वरना छुपके निकाह कर दी एक ऐसे शख्स के साथ जिसने अपने घर वालों से वो निकाह छुपाया। क्या हैसियत है इस निकाह की? वो आपे से बाहर हो गई। इस निकाह की हैसियत का अंदाज़ा इस बात से लगा लो कि आज कई कत्ल हो जाने थे। मिनाहिल ने दुखी अंदाज से कहा, तो इस मनहूस की वजह से ये दिन देखना पड़ा ना। न ये अरहम की ज़िंदगी में आती, न ये सब होता कि सब अपने ही एक दूसरे के दुश्मन बन गए। इसने ही दरार डाली है। मेहरू ने फिर से उसे धक्का देना चाहा कि मिनाहिल ने उसे अपनी दूसरी तरफ कर लिया। तुम चलो यहाँ से यार, ये तुम्हें चोट पहुंचा देगी। मिनाहिल ने गुल का हाथ थामे वहां से जाना चाहा। क्या कहा? फिर से बोलो। मैं इसे चोट पहुंचाऊंगी? मैं पागल हूं क्या? तुमने मुझे पागल कहा है। मेहरू ने अचानक मिनाहिल की गर्दन को अपने शिकंजे में लिया। क्या कर रही हो मेहरू आपी? भाभी हैं वो। जेबी ने उसे रोकना चाहा तो उसने जेबी को भी जोर से धक्का दिया कि वो दूर जा गिरी। तुम सब मेरी खुशियों के कातिल हो। मैं तुम सबको मार दूंगी। वो हंसियाती अंदाज में चिल्लाई थी कि तभी फरहीन बेगम, बिलाल और आदिल अंदर दाखिल हुए। जेबी को नीचे गिरा देकर आदिल ने फौरन सहारा देकर उठाया, जबकि मिनाहिल बिलाल को देखते अपना हाथ गले पर रखे गहरे सांस भरती उसके सीने में जा समाई। क्या हुआ मिनाहिल, ठीक हो? बिलाल ने बहुत प्यार से पूछा। वो गला दबा रही थी। गुल ने धीरे से बिलाल को शिकायत लगाई तो बिलाल ने हैरत और सदमे की कैफियत से मेहरू को देखा। हाँ, गलत किया मैंने। मुझे इनका नहीं तुम्हारा गला दबाना चाहिए था। फसाद की जड़ तो तुम हो। मेहरू ये कहते हुए पागलों की तरह गुल पर झपटी कि एकदम फरहीन बेगम ने आगे बढ़कर मेहरू के मुंह पर तमाचा दे मारा। वो एकदम साकित होते माँ को देखने लगी। बस कर दो अब, और कितना सताना है माँ बाप को। बस कर दो, अब कोई और तमाशा नहीं लगाना। चलो मेरे साथ। वो उसे लिए वहां से बाहर निकली। तुम्हें तो चोट लगी है। आदिल ने मेहरू को देखते अफसोस से सरनफी में हिलाया कि जेबी की कलाई से खून बहता देखकर वो फिक्रमंद हुआ। उसकी चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभी थी, जिसे आदिल ने फौरन निकाल कर बाहर किया और उस पर अपना हाथ रखा। उम्मीद नहीं थी कि मेहरू आपी इस हद तक चली जाएंगी। आदिल ने बिलाल की जानिब देखते धीमे लहजे में कहा, ये नेचुरल है और मेरे ख्याल से आज जितने सबको थप्पड़ पड़ चुके हैं, एक तुम्हें भी पड़ना चाहिए। बिलाल ने मिनाहिल को थपकी देते आदिल की जानिब कदम बढ़ाते उसे सख्त खोरी से नवाजते कहा, मुझे? लेकिन मैंने क्या किया? तुम इस निकाह के गवाहान में शामिल थे और गवाहों को तो बंदा पहले गोली से उड़ाए। बिलाल की बात सुनता आदिल खसियाना सा हुआ। वो तो उस वक्त मैं लड़की वालों की तरफ से था। आदिल की बात पे बिलाल ने उसे एक धमोका जुड़ा तो वो आह भर के रह गया। क्या कर रहे हैं? क्यों मेरी जान निकालने पर तुले हैं? वे रहम कर ले मेरे हाल पर। सिर्फ निकाह हुआ है, रुखसती नहीं मिली मुझे। वो बिलाल के कानों में घुस के बोलता उसे तपा गया। पुत्र अब सारी जिंदगी तो रुखसती के लिए तरसता रही। अल्लाह न करे बिलाल भाई, कैसी बददुआएं दे रहे हैं। मेरे बच्चे ऊपर से रात देख रहे होंगे कि कब। बकवास बंद कर। आदिल पटड़ी से उतर गया था, जबकि उनकी हल्की आवाज में बातों को वो तीनों ही नहीं सुन पा रही थी। जिस तरह की तेरी बहन के हालात है ना, मुझे नहीं लगता कि तेरा चिड़ी जितना बच्चा भी होगा
ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں۔ بلال اس کے کان میں دھیرے سے بولتا باہر نکل گیا، جبکہ عادل تو کانوں کو ہاتھ لگاتا رہ گیا۔ وہ بلال کو بہت شریف بندہ سمجھتا تھا، لیکن آج پتہ چلا کہ وہ ان سب سے 2 ہاتھوں پر ہی ہے۔ ارحم ماں کو تسلیاں دیتا انہیں میڈیسن دے کے سلاتا باہر آ گیا۔ باپ نے اسے قطع تعلق کر لیا۔ جب تک وہ کمرے میں رہا، اکمل چودھری کمرے میں نہ گئے۔ بابا، اس نے باہر صحن میں کھڑے اپنے باپ کو پکارا۔ کیا معاف نہیں کر سکتے؟ وہ ان کی جانب دیکھتا دکھ سے پوچھ رہا تھا، جبکہ اگلے پل انہوں نے رخ پھیرتے اپنے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ارحم کے لیے یہ لمحے بہت تکلیف دہ تھے، جنہوں نے ساری زندگی پیار سے اسے ہتھیلی کا چھالا بنا کے رکھا۔ آج انہوں نے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ اپنا آپ سب کی نظروں میں مجرم سمجھ رہا تھا۔ دن کو اتنا شور شرابہ تھا، رات کے اس پہر اتنی ہی گہری خاموشی کا راج تھا۔ وہ زنان خانے سے گزرا تو پری گل اور مناحل کو وہیں ایک طرف بیٹھا دیکھ کر ٹھٹک کے رکا۔ بھابھی، آپ ابھی تک یہیں ہیں؟ وہ ایک نظر پری گل کو دیکھتا مناحل سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، وہ بلال عادل کو لے کے زیبی کے روم میں تھے، کچھ ضروری بات کرنے گئے ہیں تو میں یہیں پری کے پاس بیٹھ گئی۔ مناحل نے دھیمی سی مسکان کے ساتھ کہا۔ آپ تھک گئی ہوں گی، جائیں سو جائیں جا کے، میں بھائی سے کہتا ہوں۔ وہ بھی اس وقت کیا عدالت لگا کے بیٹھے ہیں؟ ارحم زیبی کے کمرے کی جانب بڑھا کے بلال کو وہاں سے باہر آتا دکھائی دیا۔ مسٹر، تو پھر کیا ارادے ہیں آپ کے؟ بلال نے اسے تیکھے چتونوں سے دیکھتے پوچھا۔ کیا بتاؤں اب بلال بھائی، آج جو سب کچھ ہوا مجھے اس کی توقع نہ تھی، مجھے اس سے زیادہ کی توقع تھی۔ میرے بھائی، بلال نے ویسٹ پہ ہاتھ رکھے ارحم کو بری طرح چونکایا۔ خیر، آج آغا جان نے جو ماں سائیں پر بندوق تانی، انہیں دھکا دیا، یہ بات میں کبھی نہیں بھلا پاؤں گا، اور اس سب کی وجہ تم ہو۔ بلال نے اسے کہتے ساتھ سب خوری سے نوازا۔ صحیح کہہ رہے ہیں، میں بہت برا ہوں۔ ارحم بھی رنجیدہ ہوا، اور اس سے پہلے کہ میں برا بن جاؤں، اپنی بیوی کو لے کر اپنے کمرے کی جانب نکلو فوراً۔ وہ اسے چٹکی بجاتے وہاں سے نکلنے کو بولتا، کچھ حد تک اسے آسودہ کر گیا۔ کوئی اور ہے یا نہیں؟ بلال اس کے ساتھ تھا۔ پری گل مسلسل روئے جا رہی تھی اور ارحم خاموش بیٹھا بس اسے دیکھے جا رہا تھا، اور ساتھ ٹیشو پہ ٹیشو اسے تھمائے جا رہا تھا۔ اب کی بار اس نے سو سو کرتے ارحم کو دیکھا تو اس پل ارحم کو لگا کہ ان 2 کانچ سی آنکھوں نے اس کا دل لوٹ لیا ہو۔ ارے یار، ایسی نظر سے دیکھا ظالم نے چوک پر، ہم نے رکھ دیا کلیجہ چاقو کی نوک پر۔ توبہ استغفر اللہ، مجھے بھی کیا عادل والی بیماری پڑ گئی ہے میراثیوں کی طرح گانے کی۔ آپ مجھ پر ہنس رہے ہیں؟ پری گل کو اس کی اسمائل میں اپنے لیے مذاق محسوس ہوا۔ ارے نہیں، میں تو نہیں ہنسا۔ ارحم ایک دم سنجیدہ ہوا۔ ویسے بائی دا وے، کتنی دیر تک اور یہ رونے دھونے کا سین رکھنا ہے؟ کیوں، آپ کو رونا نہیں آ رہا؟ آج آپ کے گھر میں قتل و غارت ہوتے ہوتے بچا، اور اس سب کی وجہ میں ہوں، پھر تو مجھے رونا نہیں غصہ آنا چاہیے نا۔ ارحم نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا کر کہتے گہرا سانس بھرا۔ آپ کو مجھ پر غصہ آ رہا ہے؟ آپ مجھے ماریں گے؟ پر پلیز میرے منہ پر مت مارنا، باقی جہاں مرضی مار لینا۔ اس کی باتوں پر ارحم بری طرح سے چونکا۔ یار، میں کیوں مارنے لگا تمہیں؟ پاگل نہ ہو تو بس اتنا یاد رکھنا گل کہ اس گھر میں جگہ بنانے کے لیے تمہیں بہت محنت کرنا پڑے گی۔ میرے گھر والے برے نہیں ہیں، سب دل کے بہت اچھے ہیں، بہت سونے تمہیں اپنا بھی لیا ہے۔ ماما بھی ناراض ہیں تھوڑی، لیکن مان گئی ہیں۔ بابا اور آغا جان شاید اگلی صدی میں مانیں گے۔ ارحم اٹھتے ہوئے کبرڈ سے اپنا ڈریس لیتا افسردہ ہوا۔ آپ فکر نہ کریں چودھری جی، میں پری گل ہر قدم پر آپ کے ساتھ ہوں۔ پری گل کے اتنے معصومانہ ایکٹ پر ارحم تو جی جان سے ہی فدا ہو گیا۔ آدی کے بچے، اب جاؤ بھی، بلال بھائی چلے گئے ہیں اور تم کون سا یہاں بیٹھ کے تارے گن رہے ہو؟ عادل کے مسلسل ٹکٹکی باندھ کر دیکھتے ہی زیبی نے دانت پیستے کہا۔ ہائے، رخصتی ہوئی نہیں، اور آدی کے بچوں کو ان کی ماں ابھی سے یاد کر رہی ہے۔ وہ دل پر ہاتھ رکھ کے ٹھنڈی آہ بھر گیا۔ انتہائی کوئی بدتمیز ہو، نکلو فوراً میرے روم سے۔ وہ اسے اب باقاعدہ دھکے دینے لگی تو عادل نے اس کی کمر کے گرد بازو لپیٹتے اسے اپنے حصار میں لیا۔ یار، اب شوہر بن گیا ہوں تمہارا، آخر چودھری عادل اکمل نام ہے میرا، تھوڑا تو عزت سے بات کر لیا کرو۔ وہی تمہاری ٹون ہے، کینچی کی طرح زبان چل رہی ہے، مجبور نہ کرو کہ ابھی کاٹ دوں۔ عادل نے اسے مصنوعی کھوری سے نوازا۔ یہ تم ڈرا کسے رہے ہو؟ میں تم سے ڈرنے والی نہیں، سمجھے؟ چودھری ہوگی اپنے گھر، چلو شاباش نکلو۔ زیبی اپنے جذبات غصے کے لبادے میں چھپاتی نظریں پھیرتے بولی کہ اگلے ہی لمحے عادل نے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ لے جاتے اس کا چہرہ اپنے چہرے کے قریب جھکایا۔ ایک پل کو زیبی کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو گئی، دونوں ہی یکٹک ایک دوسرے کو دیکھتے چلے گئے۔ عادل نے اپنے ہونٹوں اور اس کے لبوں کے بیچ میں
1 इंच के फासले को भी मिटाते धीरे से उन्हें अपनी गिरफ्त में लिया कि ज़ेबी पूरे जी जान से कांप उठी। उसका लम्स धीरे धीरे शिद्दत इख्तियार करने लगा कि ज़ेबी ने उसे पीछे से हटाते होश दिलाना चाहा, पर वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करता अपनी मनमानी करता पीछे हटा। मर्ज़ बढ़ता गया। चूँ चूँ दवा दी, वो उसके लबों को फिर से फोकस करता उसके 14 तबक रोशन कर गया कि अगले ही पल वो वहाँ से सीधा बाथरूम की जानिब भागते अंदर से डोर लॉक कर गई। आदिल के कहे ने उसके लबों पर मुस्कान बखेर दी। चौधरियों की सफ़ेद हवेली जो अपने नाम की तरह एक मुकाम रखती थी, क्या यहाँ पर रहने वालों के दिल भी सफ़ेद थे या काले? आइए चल के अंदर देखते हैं। अरहम की शादी को आज 2 माह हो चुके थे। परीगुल ने अपनी खिदमत और इसार से सबके दिलों में घर कर लिया, सिवाय एक हस्ती के, आगा जान। वो अब ज़्यादातर अपने कमरे में बंद रहते थे। सभी बारी बारी उनके पास गए और उनको मनाने के लिए अरहम ने तो बाकायदा माफ़ी मांगी, लेकिन उनकी खामोशी न टूटी, तो थक हार कर वो भी खामोश हो गया। उस वक्त सफ़ेद हवेली में हर तरफ गूंज थी, खुशियाँ, कलाकारियाँ थीं, क्योंकि इस ख़ानदान के बड़े पोते और बहू ने आज खुशखबरी सुना दी थी, और साथ ही बिलाल को एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट भी मिला। सभी डबल खुशी मना रहे थे। सादिया बेगम और फरहीन बेगम भी खुश थी और भी अब थक कर उठ कर गई तो जवान पार्टी थोड़ा खुल के बैठे। भाई बिलाल भाई की मेहनतें तो रंग लाई हैं, अब अरहम भाई कब गुड न्यूज़ सुनाएंगे? आदिल ने अरहम को आंख वेंग करते पूछा तो बिलाल ने उसे एक सख्त खुरी से नवाजा। सभी उस वक्त ड्राई फ्रूट्स एंजॉय कर रहे थे। यार गलत ना समझे, मैं प्रोजेक्ट पर मेहनत की बात कर रहा हूँ। आदिल ने जल्दी से सफाई दी। अच्छा, हमें लगा तो प्रोजेक्ट की मेहनत की बात कर रहा है। अरहम ने भी फौरन लुकमा दिया तो आदिल समेत दोनों ही कहकहा लगाते हंसे, जबकि बिलाल ने पास पड़ा क्वेश्चन उठाकर अरहम के मुंह पर दे मारा, जिसे उसने महारत से खींच कर लिया। अगर 1 मिनट में तुम दोनों ने अपनी चोंच बंद ना की तो तुम दोनों की टकरें पक्की हैं। बिलाल ने मिनाहिल के हाथ से पिस्ता लेते उन्हें घूरा। वैसे भाभी, इन चीज़ों की आपको ज़रूरत है, आप बार बार भाई को खिलाई जा रही हैं। आदिल अब पटरी से उतरने लगा तो अरहम ने वहाँ से भागने में ही आफियत समझी। तो बास नहीं आता ना? बिलाल अपनी जगह से उठा। भाई मेरी तरफ से भी 2 लगाना। ज़ेबी ने लुकमा दिया। भाई मेरी तरफ से भी, परीगुल भी चहकते हुए बोली, और मेरी तरफ से भी। अचानक से दीवार के पीछे से अरहम ने सर निकाल के कहा तो जहाँ पर सभी हंसे थे, वहीं आदिल गहरा सांस भरते ज़ेबी को आंखों ही आंखों में वार्न करता उठा। एक तरफ खामोशी से बैठी मेहरू ने अपने भाई को देखा और मुस्कुरा दी। वक्त रहते वो संभल गई थी और उसे समझाने में सबसे बड़ा हाथ आदिल का ही था। उसी ने बहन को संभाला था। उसका साथ दे के वो खुश थी, क्योंकि अरहम को तो उसने पाया ही ना था, तो उसे खोने का दुख कम ही हुआ, पर अपने भाई को पा लेने की खुशी सबसे ज़्यादा थी, जैसे वो उसके लिए दवा का नहीं दुआ का काम कर गया हो। मेहरू की आंखों की तपिश महसूस करते आदिल ने उसे देख तो धीरे से उसके पास जाते उसके माथे पर अपनी लब रख गया और उसे अपने होने का एहसास बख्शा। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सीके नॉवेल्स का ये आज का नॉवल भरपूर पसंद आया होगा। आपको हमारा आज का ये नॉवल कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और हमारे जिन सुनने वालों ने हमारे चैनल सीके नॉवेल्स को सब्सक्राइब नहीं किया, मेरी उन सबसे दरख्वास्त है कि वो सीके नॉवेल्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।